Next thing is displacement methods. Next thing is displacement method. Force method we have completed. And in the very beginning I had told you that we have only two approaches. What are those? Force method and another is displacement method. That has been communicated to you. Force method and displacement has varieties of methods suggested by time to time by persons. और ये भी बताया था मैंने आपको, it may also possible that your approach, you may be in that list also. Your approach may also be in that list. क्या करना होगा इसके लिए? आपको कुछ सोचना होगा, कुछ डेवलप करना होगा, which makes easiness in calculating the values. Once easiness in calculating the value will be accepted by all persons of the world, then you will be known. ऐसे ही काम करते हैं लोग, अलग से थोड़ी होते हैं कोई. मैक्सवेल कोई अलग से थोड़ी ना है, कस्टिग्लियानो कोई अलग से थोड़ी ना है. ऐसे ही लोग होते हैं. जो कंसंट्रेशन, जो फोकस है, पूरा अपना ओरिएंटेशन एक सिंगल पॉइंट के ऊपर. और मैंने मोटिवेट भी आपको किया था कि एवरीबॉडी कैन डू. इन लास्ट सेमेस्टर आई टोल्ड यू the concept of thinking of Castigliano sir. बताया था ना कैसे उन्होंने लिंक किया होगा इसको. मैं तो मिला नहीं उनसे, है ना. I did not met with that great personality, but it was my assessment कि उन्होंने ऐसा कुछ सोचा होगा. least work philosophy behind the least work for living beings is incorporated to non-living also. यही तो बताया था मैंने कि हम लोगों की जो वर्किंग होती है उसी को उन्होंने उस पे नॉन लिविंग पे उन्होंने नोटिस करना शुरू किया, और उन्हें पाया कि नॉन लिविंग भी बिल्कुल वही फॉलो करता है. उन्होंने भी नोटिस किया कि नॉन लिविंग भी बिल्कुल वैसा ही एज इट इज फॉलो करता है. और फिर उस पर अपना जो है क्या किया, उन्होंने फोकस किया. एंड फाइनली he got सक्सेस. और जब तक ये दुनिया रहेगी, स्ट्रक्चर रहेगा, तब तक कैस्टिलियानो का नाम अमर रहेगा. तब तक नाम उनका अमर रहेगा. तो नेचुरल चीजें जो हैं, व्हाट आर द नेचुरल थिंग्स अवेलेबल टू अस, पिक एनी नेचुरल टाइप ऑफ थिंग एंड डू इम्प्लीमेंटेशन. Implementation work is the work of engineers. You know very well. मालूम है नहीं मालूम है? आपको implement करना है. There is difference between scientists and engineers. Engineers are the creators for the future. Engineers, responsibility of engineers is to create the future, and scientist only tells the present. Scientist only tells the present. प्रेजेंट के बारे में रहता है वो. कल को किस तरीके की गाड़ी पे हमें चलना है फॉर कंफर्ट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बिना सोचे नहीं आ जाएगा बच्चों. ऐसे बैठ के आइडियल में आकर और
यूनिवर्सिटी के पेपर को सॉल्व करके नंबर ले लेने से काम नहीं चलने वाला। 80-90 कितने भी आ जाए परसेंटेज, इट विल बी मीनिंगलेस इफ द ऑब्जेक्टिव इज नॉट फुलफिल्ड। ऑब्जेक्टिव आप फुलफिल करो, यू विल बिकम एज ए स्टार। यू हैव टू लिव लाइक एज ए स्टार, नॉट लाइक एज ए इंसेक्ट टाइप ऑफ पर्सन्स। Clear? So in displacement method, many methods was told to you. What are those? First one was slope deflection, another कौन सा था? Moment distribution, Gane's method, another और कौन से थे, भूल गए आप लोग? If we are going to analyze the structure with the help of matrix, then the approach is कौन सी method? Stiffness. मैट्रिक्स के दो अप्रोच, एक फोर्स मेथड में अगर होता है तो कौन सा मेथड है? फ्लेक्सिबिलिटी. If we are applying the matrix analysis based on force approach, then that approach is flexibility method. And if we are applying the displacement method using matrix approach, then that will be stiffness. It should be very much clear to all of you. It should be very much clear to all of you. अभी तो मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे मेथड्स बताऊंगा मैं. I will discuss the slope deflection, moment distribution, flexibility method, stiffness method, general consistent deformation method. Already you are aware. And finally I will tell you at the last I will tell you the method which is used, which is most frequently used by the engineers, and that is called as engineers method. वो भी आपको मैं बताऊंगा. 3-span time taken to analyze 3-span beam, है ना. अब देखिएगा, it minimum time requires 10 to 20 minutes, but in actual our structure are very big. Our structure are very big, and the time required to analyze the entire structure should not be so time consuming. So we engineers invented approach which are used to find the values used for the design. Consistent deformation method, flexibility method, these are the conventional method. And let me tell you very frankly, these two methods never used in design. Never be used by the designer. बहुत अच्छा डिजाइनर होगा, लेकिन उसे फ्लेक्सिबिलिटी मेथड पूछोगे नहीं बता पाएगा, बिकॉज ही इज नॉट इन यूज. पढ़ रखा है उसने, बट प्रेजेंटली ही इज नॉट इन यूज. वाई ही इज नॉट इन यूज? क्योंकि ज़रूरत नहीं है, और उसने डेवलप कर रखे हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स डेवलप कर रखी हैं उन मेथड्स को, जो कि उसी पे बेस्ड है. जो कि बेस क्या है? बेस वही है, कन्वेंशनल. द बेसिस इज कन्वेंशनल. Basis is conventional. So अच्छा, इसका मैं अप्रोच भी बता चुका हूँ ना. एक प्रॉप्ट कैंटिलीवर मैंने लिया था, आई थिंक, है ना. प्रॉप्ट कैंटिलीवर वाज टेकन. ये पहली क्लास में शायद बताया था मैंने, तो बहुत सारे लोग मिसिंग होंगे, तो मैं दोबारा फिर से पिक कर लेता हूँ. इन वेरी बिगिनिंग, टू एक्सप्लेन द डिस्प्लेसमेंट अप्रोच, दिस इज नॉट बेसिकली मेथड, दिस इज बेसिकली अप्रोच.
This is basically approach. To explain this, the approach of displacement method in my first class, I picked up this simple beam, this simple prop cantilever beam, and analysis of this beam was explained using both method, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फोर्स के बारे में तो पता ही है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ. सो वी नो वेरी वेल दैट दिस पॉइंट, सपोज दिस कैरीज अ यूडीएल. यूडीएल का ही था ना, बताया था ना, यूडीएल का बताया था ना. कॉपी है, जरा खोलो उसको, क्योंकि कैलकुलेशन में वही वाले लूँगा टू सेव द टाइम. यूडीएल ही रहा होगा. यूडीएल था ना, हाँ यस यूडीएल था. Look at this point. This point is A, this point is B. Look at this point. Point A, how many degree of freedom? Point A has how many degree of freedom? Degree of freedom equals to 0. And at this point, degree of freedom is कितना? How much? 2. Right? If this entire length of the beam is supposed to be constant, if the entire length of the beam means AB, length of AB does not yield, means remain same, then अभी degree of freedom क्या है? This one and this one. If the length of AB does not change, then this degree freedom क्या होगी? It will be cancelled out. Clear? It will be cancelled out. If length of AB does not vary. Clear to everybody? So of course it has this and has 2 degree of freedom, but if length does not change, then its degree of freedom is 2 minus 1 equals to only 1. So when we apply this load UDL, then after the application of this load UDL, it will deform. It will deform according to the magnitude of the load. कैसे डिफॉर्म होगा? It may deform in this manner. होगा नहीं? At point A there will not be any degree of freedom, means this is exactly straight. This is exactly straight. At point B हमने आपको बता ही दिया है कि इसकी लेंथ बदलेगी नहीं, जो कि मैं गलत कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ये डिफ्लेक्टेड शेप होगा तो लेंथ तो क्या होगी? क्या होगी? लेंथ बदल जाएगी ना, बढ़ जाएगी ना, क्योंकि मैं गलत चीज़ को ले रहा हूँ. इसलिए होता क्या है, ये लेंथ बहुत मैन्युटली माइक्रोन में होती है, बहुत कम माइक्रोन, जो कि विजिबल नहीं होता है. हमारा जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, इसमें जब लोड आता है तो क्या आपको क्या लगता है? डिफॉर्म नहीं होता है? होता है, बट लिमिट इज वेरी 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 लेस. वी कैनॉट ऑब्जर्व इवन ए वेरी माइक्रो स्केल लेवल. वी कैनॉट ऑब्जर्व इवन ए माइक्रो स्केल लेवल. And on that basis, on that philosophy, this length is considered to be remains same. That's why it is remains same. जितना ये बना रहा हूँ मैं, इतना नहीं होगा, है ना? It's just for understanding. It's just for to develop the understanding. इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा नहीं होगा. So no degree of freedom. State means state after the load, before the load and after load. But here it has degree of freedom and it will rotate. Suppose this is theta, और ये जो रोटेशन था यही था, यही क्या था? थीटा भी था.
That was the theta b, rotation at theta b. And you know very well, this degree of freedom is what? क्या है ये? Degree of freedom or क्या है? It is kinematic indeterminacy. Final degree of freedom, final degree of freedom. After making all restraint, अब जैसे इसकी कैलकुलेट करनी है, हाउ विल यू कैलकुलेट द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी ऑफ दिस स्ट्रक्चर? आपको बताया था दो चीजें, आपको काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी में दो चीजें, यू विल कैलकुलेट काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी कंसीडरिंग मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल एंड मेंबर्स आर नॉन एक्सटेंसिबल. Until unless it has not been mentioned that the member is either extensible or inextensible, you have to consider members are extensible. You have to take in that members are extensible. अगर कह दिया जा रहा है तो बात दूसरी है, then you will consider the inextensible. तो अगर कुछ नहीं कहा जा रहा है, केवल पूछा जा रहा है कि what is the kinematic indeterminacy of this beam, then you have to find the total number of nodes, node 1, node 2, and you know very well that one node in a plane has how many degree of freedom? 3. So 3 degree of freedom can be possible. 3 degree of freedom here can be possible. So total number of possibility to have the degree of freedom by all two joint, that will be 3 multiplied by 2, that is 6. But out of these 6, some degree of freedom are restraint, and you have to find that number of restraint. And you can calculate fixed support restrict 3 number of restraints, and roller support can restrain 1 number of movement, and that movement is vertical. So total number of restraint is 4. So 6 minus 4 is 2. That's why kinematic indeterminacy without considering the inextensibility is 2. But when extensibility has been considered, will be considered, then what will be the? It will be 2 minus number of member. बताया था मैंने आपको, 2 minus number of member. That in that case degree of freedom will be only 2 minus 1, that is 1. So this is the this one is the kinematic indeterminacy taking members are inextensible. That should be very much clear to all of you. जैसे बीम के केस में मैंने बताया था ना, बीम के केस में क्या बताया था आपको कि ये लगा हुआ टोटल नंबर ऑफ अननोन, how many number of unknown will be there? How many number of unknown? This. You should not consider this one and this one. ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे चुका हूं, ठीक है? अदरवाइज इसको कंसिडर करने लगे तो कितने हो जाएंगे, है ना? 7. इट विल गिव यू द रॉन्ग रिजल्ट. इस जो अप्रोच है ना उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगी. क्लियर बेटा? सो point B has degree of freedom theta b. After the load, this will be the situation. Clear? कोई दिक्कत है अंदर? ठीक. कैसे एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो गई पता चल गया ना, ये वाली कैसे कैंसिल आउट हुई पता चल गई होगी, है ना? मेंबर आर सपोज टू बी इनएक्सटेंसिबल. बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये छोटी सी चीज जो है ना आपको बार बार पिंच करती है, अच्छी बुक्स पढ़ने को रोक देती है. जब भी अच्छी बुक्स में पढ़ोगे ये सारे कॉन्सेप्ट वहां पिक होंगे फ्रीक्वेंटली, कहीं कुछ, और अगर नई कॉन्सेप्ट हैं तो फिर आप बुक पढ़ ही नहीं सकते. यू विल नॉट बी इन पोजिशन टू रीड दैट बुक. मैं चाहता हूं कि आप कोई भी बुक पढ़ो, इतनी मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डेवलप द कॉन्सेप्ट विच इज रिक्वायर्ड prior to
reading any book. Clear? That is my argument. So, अब इसको हमें कैसे करना है? यूजिंग डिस्प्लेसमेंट मैथड. दैट आई वांट टू टेल यू. दैट आई वांट टू टेल यू. कैसे हम इसको प्रोसीड करें? फोर्स मेथड को तो आपको मालूम है क्या करना होता था. रिडंडेंट लेना होता था, प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते थे, डिस्प्लेसमेंट निकालते थे, 1 by 1 क्या करते थे, यूनिट लोड लगाते थे और फिर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिखते थे. यही तो करते थे. इट वाज द अप्रोच ऑफ फोर्स मेथड. बट व्हाट विल बी द अप्रोच इन डिस्प्लेसमेंट? व्हाट विल बी द अप्रोच इन डिस्प्लेसमेंट? सो इन ए वेरी बिगिनिंग मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहले जो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे विद इन वेरी शॉर्ट. अभी तो मैं पूरा ही बताऊंगा मैं, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि पहले हम सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम ही कैलकुलेट करते हैं. मीन्स थीटा बी, रोटेशन एट पॉइंट बी, सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम फिर आगे प्रोसीड करते हैं. इसके आगे फिर फर्दर हम प्रोसीड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट दिस थीटा बी, रोटेशन एट. अगर इफ आवर बीम इन प्लेस ऑफ दिस, ये हमारा अगर होता, ऐसा होता, सो आपको मालूम है कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी? हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दिस कंटिन्यूअस बीम विल हैव? रोटेशन को दिस वन हॉरिजॉन्टल तो हम ले नहीं. इट मीन्स आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड it may deflect in this form. So this will be the if this point is A, this point is B, this point is C, then this value will be theta A. This point will be which one? Theta B. ये भी, ये वाला और ये दोनों, both this angle and this angle will be theta B. Similarly tangent यहाँ पे ये क्या होगा? थीटा. At point B, बी पे क्या होगा? ऐसा ही कुछ होगा क्या? ये ऐसे होगा क्या? एट पॉइंट बी दिस सिचुएशन विल बी देयर. सो दैट इफ यू वांट टू फाइंड द स्लोप देन यू हैव टू मेक द टेंजेंट, एंड आफ्टर मेकिंग द टेंजेंट बोथ वैल्यू विल बी व्हाट? बोथ वैल्यू विल बी सेम. दिस विल आल्सो बी थीटा बी and this will also be theta b. If joint B has not been broken, if joint B has not been, means this one segment and this one segment has not been broken. Broken टूट जाएगा तो फिर ये नहीं होगा, फिर डिफरेंस आएगा. If there is difference, then it will not be in equilibrium condition. That is the equilibrium condition. And since it has the same magnitude of the rotation, but the direction is opposite. Notice it, है नहीं opposite. Initially क्या था ये? It was straight, but it is going upward direction. है कि नहीं? It is going upward direction. This was initially straight, but now it is going in downward direction. This is going in upward direction and this is going in downward direction. Therefore, it will have the moment in this manner. It will have the moment in this manner. Is it clear to all of you? Therefore, it will have the moment in this manner. Means this value will be what? This value will be m. So, if this part is A, if this part is C, so this one part, this ये वाला part, इसको हम लिखेंगे क्या? अगर मैं ऐसा लिखूं, इस वाले पार्ट के लिए, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? MBA लिख सकता हूं, और उस वाले पार्ट को क्या लिख सकता हूं? M, ये दिस इज B ना, तो BC, MBC लिख सकता हूं. And if the value of
theta b and theta b both are same, then what will be the value of MBA and MBC? क्या होगा? Magnitude will be same but in opposite nature. Magnitude will be same but in opposite nature. गलत हो गया क्या? But will be in opposite nature. And we will have equilibrium equation. We will have equilibrium equation. And what will be that equilibrium equation? That you should know. That you should know. That should know. What will be the equilibrium equation at point B? Can you tell me? Algebraic sum will be 0. Algebraic sum will be 0. That will be the equilibrium condition. That will be the equilibrium condition. That will be the equilibrium condition. Is it clear? So at point B, equilibrium condition अगर मैं लिखना चाहूँ, so equilibrium condition, then it will be MBA plus MBC, that is 0. This is the equilibrium condition. Clear? ये जो मैंने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है इसको हम इधर यूज करें. एक चीज़ को आपको पकड़ना है, एक भी चीज़ छूटने ना पाए. एक भी चीज़ छूट गई तो फिर दिक्कत होगी. बहुत मुश्किल से पकड़ में आती है. क्लियर? व्हाई एट एनी ज्वाइंट लेफ्ट साइड मोमेंट एंड राइट साइड मोमेंट आर सेम. इतना तो मालूम है कि भाई इक्विलिब्रियम में तो दोनों बराबर होना चाहिए, बट हाउ? It is because the members are deformed in same magnitude but in opposite nature. This is the same. This is the same. है ना? Yes. This one, this direction and this one. ये क्या रहा है तो उसका जिधर डिफॉर्मेशन होगा उसके अगेंस्ट लगेगा मोमेंट. लगेगा नहीं लगेगा? किसी को अगर हम इधर खींचें तो क्या होगा? उधर जाएगा वो. अपोजिट ये कौन सा ला है? न्यूटन्स थर्ड ला. अपोजिट डायरेक्शन. क्लियर? अब इधर यहां पर हमें कुछ चीज पहले से मालूम है. क्या मालूम है? कि यहां पे मोमेंट होगा. मोमेंट होगा, जीरो नहीं होगा. ए पॉइंट पे फिक्स है ना? तो इसका मतलब है मोमेंट होगा. क्यों होगा? क्योंकि यहां पे कोई रोटेशन पॉसिबल नहीं है. यहां पे रोटेशन कोई पॉसिबल नहीं है. दैट्स व्हाई मोमेंट विल एग्जिस्ट. मोमेंट विल एग्जिस्ट. व्हाट अबाउट एट पॉइंट बी? व्हाट अबाउट एट पॉइंट बी? इट इज फ्री टू रोटेट. इट इज फ्री टू रोटेट. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ मोमेंट एट पॉइंट बी विल बी व्हाट? Will be what? 0. Will be 0. और वैसे ही मालूम है कि हिंज सपोर्ट पे तो वैसे भी 0 होता है. But why it is 0? That has been explained to you. That has been explained to you. So the number of unknowns here, ये this is MA और यहाँ पे तुम्हें मालूम है कि this value is 0. एच को मैं लिखूं MAB और इसी तरीके से इसको मैं लिखूं, इसको लिखूं क्या? MBA. एंड वी नो वेरी वेल दैट दिस वैल्यू इज हमें मालूम होता है. तो जहां पे हमें चीज मालूम होती है, हम ये वाली जो चीज पिक किया था, हमने बी पॉइंट को पिक किया था इस एग्जाम्पल्स में, हमें सर्च आउट करना है उस पॉइंट को. we have to search out the points where this one equation can be possible. Where this one equation can be possible. We have to search that point. We have to search that point. And we have to search how many number of points. That is my question. That I want to tell you. How many number of such type of points has to be searched out? How many? बताएं कितने?
इट विल बी टोटल नंबर ऑफ काइनेमेटिक एनर्जी। उतनी जगह पे हमें सर्च करना पड़ेगा जितनी हमारी क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उतनी जगह पे। अगर हम सर्च कर पा रहे हैं देन हम डिस्प्लेसमेंट मेथड से काम कर सकते हैं। एंड दैट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दैट इक्विलिब्रियम कंडीशंस, दीज आर द एडिशनल इक्वेशन, दीज आर द एडिशनल इक्वेशन, दीज आर द एडिशनल इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे कंपैटिबिलिटी के नाम से नहीं जाना जाता है। इट इज नोन बाय इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इन फोर्स मेथड द एडिशनल इक्वेशन वाज नोन एज कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, बट हियर इट इज इक्विलिब्रियम इक्वेशन। कई बार क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है, द डिफरेंस बिटवीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन एंड कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, बहुत कई बार पूछा जा चुका है। और कोई भी अच्छा आदमी अगर आपसे वाइबा वगैरह में आता है तो वो पूछता भी है। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन इज यूज्ड इन फोर्स मेथड। क्या है? एडिशनल इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट मेथड में यूज है, and they are used to find the क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। they are used to find the degree of freedom, थीटा बी। कितने पॉइंट्स को सर्च आउट करोगे, जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उतने पॉइंट्स को आपको सर्च आउट करना, उतने पॉइंट को आपको सर्च आउट करना। क्लियर टू एवरीबॉडी? सो आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी, अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको बेस बताया जो कि आपको पहले से पता होनी चाहिए थी। बताया अभी कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट का अभी डी भी नहीं शुरू है ना। अभी तो प्रायर, इससे पहले की जो जानकारी होनी चाहिए थी वो सिर्फ मैंने आपको बताई है। अब तो शुरू अब होने जा रहा है बेसिकली। अभी तो आधे घंटे पौन घंटे का डिस्कशन पूरा यूजलेस था। अभी अब शुरू होने जा रहा है डिस्प्लेसमेंट अप्रोच क्या है। बस ध्यान से समझो, इतना तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब लोड इस पे लगेगा, when this load will act, it will deform in this manner and it will have rotation at theta at point B। इतना तो आपको मैंने बता दिया। और ये भी बता दिया है कि क्या है, this value will be MBA value will be 0। दो चीजें मैंने आपको बता दी। Two things I have made clear to everybody। So इसको सॉल्व करने के लिए how to find the value of theta B, कोई बता सकता है कैसे हम थीटा बी निकाल सकते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा बी? हाउ वी कैन कैलकुलेट? एनी आइडिया? ये आपको डेवलप करना है, दैट यू हैव टू डेवलप। जिस दिन आप ये सब चीजें सोचने लगेगा ना आपका दिमाग, आप समझ लीजिएगा कि यू आर इन राइट पाथ, यू आर इन राइट पाथ। चलिए मैं आगे का छोड़ता हूं, उसको आगे का बताता हूं मैं। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है, जैसे फोर्स मेथड में हमने उसको ब्रेक किया था, प्राइमरी स्ट्रक्चर और रिडंडेंट 1 by 1 लगाया था, वैसे भी है कुछ सेम काम नहीं, कुछ वैसा ही सिमिलर काम हम इसमें भी यहां पर भी करेंगे। सिमिलर वर्क, कौन सा वर्क है वो समझना है। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। दिस पॉइंट इज ए, इसको थोड़ा सीधा बनाऊं। क्या करेंगे हम, वी विल मेक स्ट्रक्चर ए बी। लुक एट दिस बीम। क्या किया मैंने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड दिस वन? व्हाट इज द डिफरेंस? ज्वाइंट नोड बी हैज बीन फिक्स्ड, ये तो मुझे दिख रहा है। इसके अलावा और क्या किया मैंने, इसके अलावा और क्या किया मैंने, और भी कुछ किया क्या? क्या हम इसी को ये बोल सकते हैं कि हमने यस डिग्री ऑफ फ्रीडम बी की हमने क्या कर दिया है, खत्म कर दिया? ये भी तो बोल सकते हैं। मीन्स दिस इज ए स्ट्रक्चर व्हिच डज नॉट हैज एनी डिग्री ऑफ फ्रीडम। This is a segment of beam which does not have any degree of freedom, which does not have any degree of freedom, and carries the given loading, same loading, same given loading, and such type of beam
सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अब जब ये यहाँ पे है, लोड है, तो ये डिवेट होगा क्या ऐसे, डिफ्लेक्टेड होगा। यहाँ पे रोटेशन नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और इट्स मेन इट मस्ट हैव मोमेंट, it must have moment because there is no any rotation. It does not have the rotation at point A and does not have the rotation at point B, therefore it will have the moment. और ऐसा ही इसी डायरेक्शन में होगा नहीं होगा। अगर रोटेशन ऐसा है तो उसके अपोजिट में लगेगा, या ऐसे कर रहा है तो उसके अपोजिट में। साइन बेटा बिल्कुल वेरी मच शुड बी क्लियर। होता क्या है बुक्स में, क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताऊं आपको। वो इस तरीके से नहीं होता है बुक्स में, मेनी बुक्स ये ऐसा, जैसे ये है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे बनाया हुआ है, इसको उन्होंने बना दिया, इसको ऐसे बना दिया, इधर से बना दिया, इसको ऐसे बना दिया। अब ये समझ में नहीं आता मुझे, मैं भी बहुत समय तक परेशान था। इधर से बना दिया, यहाँ से नहीं बताया उसमें, डायरेक्ट नहीं उसमें इंटरफेयर किया, उधर से बना दिया, तो बहुत कन्फ्यूजन दे। सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट टच में रहो, सही चीज पे जाओ। क्यों मोमेंट हो रहा है, क्यों मोमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये रोटेट नहीं हो पा रहा है, दैट्स व्हाई, दैट्स द रीजन। ये वाला पॉइंट ए नहीं रोटेट हो पाया, लेकिन आगे वाला तो धीरे धीरे रोटेट होना शुरू कर रहा है। तो जब इस डायरेक्शन में है तो कैसा मोमेंट जनरेट होगा, अपोजिट में। क्या डायरेक्शन है वो बाद में देखेंगे, एंटी क्लॉक है वो बाद में देखेंगे, लेकिन यहां पे होगा ऐसा ही कुछ। अगर ये डायरेक्शन लेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर इसको हम कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन से कर सकते हैं क्या, इसको किया भी है शायद हमने, किया भी है। वी आर एबल टू फाइंड द मोमेंट। रिडंडेंट अगर ले लें और इस डायरेक्शन में अगर रिडंडेंट को लें तो क्या वैल्यूज आएंगी, जो भी वैल्यू आए, मुझे नहीं मालूम कितनी आएगी, WL² 12 आएगी, लेकिन जो भी वैल्यू आएंगी दैट विल बी द पॉजिटिव वैल्यू। दैट आई वांट टू टेल यू, दैट आई वांट टू टेल यू। क्लियर बेटा? सो after making all degree of freedom of structure is 0, the moment generated at the ends are known as fixed end moments. Let me tell you very frankly, these are the fixed end moments. बता चुका था मैंने, आज थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने किया। These are the fixed end moments. हर जगह पे पूछा जाता है, हर वाइवा में पूछा जाता है, और बिना इसके आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। और ये भी बता दो मैं, 50% लोगों का फिक्स्ड मोमेंट डिफाइन नहीं कर पाते हैं, जबकि बहुत छोटी सी चीज है। कोई कठिन है क्या, इज इट डिफिकल्ट? इट्स वेरी सिंपल। क्या करना है भैया, डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म कर देनी है। इसके बाद में ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग जो भी बेंडिंग मोमेंट आएगा, दैट्स आर फिक्स्ड मोमेंट, नथिंग एल्स। इट्स वेरी सिंपल। But this simple thing is not simple thing for many of us. Clear? And we have some notations. वो मैं आपको बता देता हूँ। We have some notations. We have some notations. Notations को बाद में करते हैं। अगर हम इसको कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन से मेथड से सॉल्व करें, सॉल्व किया है ना मैंने इसको, किया है ना, नहीं किया? किया है इसको मैंने, नहीं किया। आपके लिए मैं असाइनमेंट दे देता हूँ, इसको सॉल्व करिएगा। एनालाइज दिस बीम, ये मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, घर पर जाके इसको करिए। एनालाइज दिस बीम which carries L and modulus of elasticity and moment of inertia I. इसको करिएगा जाके तक। हाउ मेनी रिडंडेंट इट हैज, कितनी रिडंडेंट? रिडंडेंट टू रिडंडेंट विल बी देयर। आप किसी को भी ले सकते हो, कैंटिलीवर, ये दोनों हटा सकते हो। आप चाहो तो आप मोमेंट को ले लो, सिंपली सपोर्टेड हो जाएगा, है ना। तो जो भी आपको पसंद आए, अच्छा जो भी आपको पसंद आए। तो दिस वैल्यू विल बी एम, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगी बेटा WL²/12 एंड दिस वैल्यू विल बी WL², both are will be same, both will be, after calculation you will get that, after calculation you will get that. घर पे जाके करिएगा, दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर करिएगा।
both will have the same value and the direction will be in this manner. So that moment WL square by 12 it is denoted by a notation. वो आपको मैं बताना चाहता हूँ, नोटेशन पे अब आता हूँ मैं. फिक्स्ड रूट मोमेंट में बता दिया मैंने, अब आता हूँ नोटेशंस पे. तो टू डेजिग्नेट दिस एज फिक्स्ड इन मोमेंट वी आर राइटिंग एज MFAB, MFBA equals to WL square by 12. That this is क्या किया हमने, M सफिक्स, ये सफिक्स में MF सफिक्स में M सफिक्स में FBA, that value is WL square by 2. And what is that? This value. This is in clockwise direction. What is the sign? Clockwise direction. Clockwise direction. डायरेक्शन कैसे लेंगे? हमेशा क्लॉकवाइज, हमेशा क्लॉकवाइज. ऑलवेज वी विल टेक क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसको क्लॉकवाइज कन्वर्ट करेंगे हम. लिसन वेरी केयरफुली. इफ आई हैव एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देन वी विल कन्वर्ट इट इनटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन. कैसे कर सकते हैं? राइट, that's true. Therefore, if I want to write this MFAB, क्या करना होगा मुझे? First of all, I have to change. I will change this as a, अभी क्या नहीं, एंटी क्लॉकवाइज था क्या? एंटी क्लॉकवाइज हो नहीं सकता. So it will be clockwise. और क्लॉकवाइज करने के लिए क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं भाई. ये WL स्क्वायर बाई 12 था, प्लस का था, क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस हो जाएगा, बस यही तो होगा. सो MFAB विल बी रिटन एज माइनस, क्या लिखा जाए? WL स्क्वायर बाई. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये होता है फिक्स्ड इन मोमेंट. प्लस माइनस कहाँ से आया, क्या आया, रटने की जरूरत नहीं है. समझो उसको, रटना पड़ेगा लेकिन समझो पहले उसके पीछे क्या रीजनिंग है. What is the reasoning? That should be very much clear to all of you. That should be very much clear to all of you. Clear बच्चों? इसी तरीके से if I have this one load W, if it is A, it is B and total is L, क्या होगा फिर मोमेंट? इसका भी कुछ होगा. कैसे निकलेगा? A, B and the values are this one. राइट? इसकी वैल्यू अभी आप कर सकते हैं, कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन मेथड से कर सकते हैं, है ना. इसको कंसिडर कर सकते हैं, जैसे इसको होमवर्क दिया था इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं. इसकी वैल्यू होगी कितनी? W बताया था ना मैंने, कितनी होती है W? A स्क्वायर B बाई L स्क्वायर. A स्क्वायर किसका होता है? जो दूर वाला है. W A स्क्वायर B बाई, और इसकी वैल्यू होती है W कितना हो जाएगा आपको पता चल गया होगा, बाई L स्क्वायर. सो वैल्यू ऑफ M, if this point is B, this point is A, this point is B, this point is A, then MFAB will be what? MFAB and MFBA. क्या होगा? MFAB क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? टेल मी. माइनस. You do not forget its minus sign. Clear? Clear? You should not forget the minus sign. क्यों आ रहा है minus sign? बताओ. Why we are? Right. In actual condition, it is anti-clockwise, but since the fixed moment are written in only one direction and that direction is clockwise, that's why it is negative. That's why it is negative, and it will be always. This condition will always be applicable. जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा अगर ए बी है, दिस इज द स्टार्टिंग एंड. स्टार्टिंग एंड हमेशा लोड की वजह से क्या होगा? नीचे ही आएगा भैया, ऊपर नहीं जाएगा. कभी ऐसा आपने देखा है कि लोड लगाए और
क्या हो जाए, हॉगिंग हो जाए। ऐसा कभी हुआ है? नेवर, इट कैन नेवर पॉसिबल, कैन नेवर बी पॉसिबल। दैट्स व्हाई इट विल ऑलवेज बी माइनस, निगेटिव साइन। मैग्नीट्यूड लोड पे डिपेंड करता है, जैसा लोड होगा वैसा हो जाएगा, लेकिन हमेशा होगा क्या, माइनस साइन से, राइट। डब्ल्यू बी स्क्वायर ए बाई एल स्क्वायर एंड इट वैल्यू विल बी डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाई स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो ये वाली वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी होगी पहले से। ये डिस्प्लेसमेंट का ही काम है, ये डिस्प्लेसमेंट मेथड की अप्रोच है। सबसे पहले हमें ये पता करना होता है फिक्स्ड इन मोमेंट, और ये रिजल्ट हम लोग डायरेक्ट याद रखते हैं। ये रिजल्ट हम डायरेक्ट याद रखते हैं। और कहाँ से डिराइव होते हैं आपको मालूम है, यू कैन डिराइव यूजिंग फोर्स मेथड, कंसिस्टेंट यूनिफॉर्मेशन मेथड, यू कैन डिराइव दैट। क्लियर? इसके बाद क्या करते हैं, एक तो ये किया हमने, पहला स्टेप किया। क्या स्टेप किया पहला बताओ, आप ही बताओ। व्हाट वी डिड? We did, we make, yes, we made all degree of freedom equals to 0, and we calculated the moment, fixed in moment, calculated the fixed in moment. That ये बस केवल इतनी चीज़ की हमने, एक स्टेप किया है, हमने एक स्टेप किया है बस। इसके बाद आगे का स्टेप, और अगर हम कंपेयर कराना चाहें फोर्स से, तो ये वाला स्टेप किससे कंपेयर हो सकता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर से। हो सकता है, नहीं हो सकता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या था, रिलीज था। यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो रही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म हो रही है। वहाँ पे उल्टा है उसका, है ना, उसमें हटा रहे हैं, इसमें हटाना ऐसे ही मान सकते हो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हटा रहे हैं। भी अगर ऐसे भी सेम अगर देखें तो, है ना, चीज़ें थोड़ा लिंक करके चलना है हमें, तो वो बड़ा फीलिंग आ जाती है ना, और इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाता है। क्लियर? सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी, अच्छा यहाँ पे देखिए थीटा इज 0, थीटा इज 0 एंड थीटा बी इज 0, यू नो वेरी वेल। हियर थीटा वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहाँ पे क्या हो गया, थीटा बी इक्वल टू 0। होगा नहीं होगा, बिकॉज ये तो पहले से यहाँ पे 0 है, नो प्रॉब्लम। थीटा बी, थीटा ए, यहाँ पे रोटेशन पहले से 0 था, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अब डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस इसको करने की वजह से ये 0 हो गया। लेकिन ये तो हमारा गिवन स्ट्रक्चर है नहीं, ये तो गिवन स्ट्रक्चर हमारा है नहीं। अब क्या करेंगे वो देखना है। इसको हमें ऐसा कुछ अभी स्ट्रक्चर इसमें ऐड करना है जो कि इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये मिल जाए। दैट वी वांट टू फाइंड द स्ट्रक्चर। ऐसी क्या चीज है, क्या चीज ऐसी हो सकती है कि जो इसके साथ ऐड करा के ये बन जाए। यस, राइट, यही मैं इनिशिएटिव चाहता हूं आप लोगों से, यही इनिशिएटिव चाहता हूं। गलत इनिशिएटिव नो प्रॉब्लम, डजंट मैटर, आई एम हियर टू करेक्ट यू, बट इनिशिएटिव चाहता हूं। क्या क्या ऐसा क्या हो सकता है, इमेजिनेशन चाहता हूं कि आप इमेजिनेशन शुरू कर दो, माइंड शुरू कर दे आपका सोचना। क्या कर सकते हैं? दीपक बोल बोल बच्चे। कोई बात नहीं, सोच रहा है, बस मेरे लिए इतना ही बहुत है, इतना मेरे लिए इतना ही बहुत है, कम से कम सोच तो रहा है। मैं आपको बताता हूं, आप नहीं सोच सकते, आई नो वेरी वेल, आई नो योर लिमिटेशन। यदि हम इसको ऐसा करें, यदि हम इसको ऐसा करें, समझिएगा, यदि हम क्या कर, हमने क्या किया, इसको फिर से हिंज कर दिया, बी को फिर से हिंज कर दिया, और क्या किया, इसका लोडिंग हटा दिया, एक्सटर्नल लोडिंग क्या किया हमने, रिमूव कर दी, एक्सटर्नल लोडिंग रिमूव कर दी। अब देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, यदि मैं, ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज बी, इफ आई स्टार्टेड, मैं अगर शुरू करूं बी पॉइंट पे, क्या बी पॉइंट पे अगर मैं शुरू कर जाऊं, क्या इस तरीके से, क्या है ये, कान को अगर ऐसे करना शुरू कर दूं, ये क्या है, ये घूम रहा है क्या, ये कैसे घूम रहा है, वाई
क्लॉकवाइज तो नहीं है, किसकी वजह से घूम रहा है? क्योंकि मैं क्या लगा रहा हूं? मोमेंट लगा। अगर मुझे इसे को घुमाना है तो क्या लगाऊंगा मैं? मोमेंट लगाऊंगा। लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा? और ये तभी पॉसिबल है, और ये तभी पॉसिबल है जब ये क्या हो, फिक्स की जगह पे यहां पे है। ये तभी पॉसिबल है जब ये फ्री टू रोटेट हो। जब ये फ्री टू रोटेट हो तो इसके लिए हमें करना ही पड़ेगा। इसका मतलब हमें कुछ मोमेंट लगाना पड़ेगा। इसका मतलब कुछ मोमेंट हमें लगाना पड़ेगा। और ये हमें कैलकुलेशन से पता चलता है कि अगर हम इसको रोटेट ये मोमेंट लगाएंगे तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप क्या होगा? कुछ ऐसा होगा क्या? ऐसा हो। इट मीन्स इट विल हैव सम वैल्यू, it will have some value. Suppose this value is 5. Suppose this value is 5. Clear? Suppose this value is 5. And we know very well that if it does not have any load, then if we suppose this moment is m. So we know very well as long as the moment is going to increase, the value of phi will automatically be क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। नहीं हो जाएगी? जैसे जैसे आप इसको बढ़ाओगे, इसको 0 करोगे तो ये 0 होगा, 1 करोगे तो थोड़ा बढ़ेगा, 2 करोगे और बढ़ेगा, 3 करोगे और बढ़ेगा। as long as you will increase the value of m, this will also be increased. And from analysis we have the relation also. And we have this relation. M is equal to 4 EI by L into phi. We have this relation. कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा, याद नहीं करवाऊंगा, बताऊंगा। We know this relation. है ना? We know this relation. कि अगर ये थीटा वैल्यू रोटेट होगा तो इतना मोमेंट यहां पे जनरेट होगा। जैसे ये वाली कंडीशन थी ना, MBA की वैल्यू कितनी होगी? अगर ये थीटा भी है तो MBA की वैल्यू कितनी होगी? 4EI by L into थीटा बी। ये मैं मालूम है। किसी भी ज्वाइंट पे रोटेट कराने के लिए कितना मोमेंट की जरूरत होगी? इतना मोमेंट की जरूरत होगी। कैसे होगा ये मैं ड्राइव करूंगा अगली क्लास में। ओके? हमें जरूरत कितने की है? अगर किसी तरीके से हमें ये पता चल जाए, अगर हमारे पास जैसे इंजेक्शन पे जो है ना कितनी डोज देनी है, बॉडी में कितनी आनी है, वहां पे एक वो होता है ना ml का जो है ना इंडिकेशन होता है। उसी तरीके से अगर यहां पर भी हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था हो कि इसकी वैल्यू एग्जैक्टली थीटा बी हो, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या हो? थीटा बी। इसकी वैल्यू एग्जैक्टली थीटा बी हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? m will be for थीटा बी। और अब अगर इसको दोनों को जोड़ दें तो क्या ये मिल जाएगा? कहां थीटा बी 0? यहां पे गिवन, यहां पे 0 है, लेकिन यहां पे तो हमने दे दिया ना फाई की वैल्यू थीटा बी की है बराबर। तो वही तो मैंने कहा कि अगर हमें किसी तरीके से ऐसी व्यवस्था हो जाए, जैसे इंजेक्शन से हम डोज देते हैं कितने ml की, कि ये थीटा भी हो जाए और ये वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाए, तो दोनों को सुपरपोज करने से ये मिल जाएगा हमें।
एग्रीड? आर यू एग्रीड? अगर ऐसी चीज कुछ हो जाए तो हमें ये मिल जाएगा। और मैं बता दूं डिस्प्लेसमेंट मेथड में यही चीज की जाती है। डिस्प्लेसमेंट मेथड में यही चीज किया जाता है, यही है डिस्प्लेसमेंट मेथड, नथिंग एल्स। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट जो कि आप लोगों को दिक्कत होती है काफी, यही है कॉन्सेप्ट। इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब मैं एक्चुअल कंडीशन में आता हूं कि एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं मोमेंट डिस्प्लेसमेंट मेथड में। एक्चुअल में क्या करते हैं, ये वाली जो चीज़ है ना जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये ऐसे नहीं होती है, ये तो समझाने के लिए था आपको, ये केवल समझाने के लिए था। लोगों ने मेथड सजेस्ट किया कि ये जो इंजेक्शन वाला है ना, इसको आप इस तरीके से नहीं लगा पाओगे, इंजेक्शन वाली बात दूसरी है, यहाँ वाला स्ट्रक्चर है वो बात दूसरी है, सेम चीज़ नहीं होगी। उसके लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया। उन्होंने डेवलप किया कि ये इसको फाइव इक्वल टू 1 के लिए आप मोमेंट निकालो कितना होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ मोमेंट टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ मोमेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ मोमेंट टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन। तो कैसे मिलेगा वो, 5 जगह पे 1 हो गया, तो व्हाट विल बी दैट वैल्यू? इट विल बी ओनली 4EI by L, and this is only for phi equals to 1, and that value is known as stiffness, and that value is known as क्या? That value is known as, that value is known as, एक कॉन्सेप्ट दिया, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट यहां पे देना पड़ा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द मोमेंट टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन। कहां पे? एट द ज्वाइंट इन इटसेल्फ, एट द ज्वाइंट, किसी भी ज्वाइंट पे यूनिट रोटेशन कराने के लिए मोमेंट की वैल्यू। और किस बात पे डिपेंड करेगी ये? EI by L पे। E is modulus of elasticity, I is the moment of inertia, product of EI is known as flexural rigidity। जो जितना अब ये है, इसको घुमाने के लिए क्या है? EI, E और I इसका है ना, रबर होता तो अब तक घुमा चुका होता है इसको। इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, इट विल डिपेंड अपॉन द मटेरियल। क्लियर? अब आपको चीज समझ में आ गई होगी कि इफ दिस वैल्यू इज 1, इफ दिस वैल्यू इज ये 5 इक्वल्स टू 1, देन दिस वैल्यू विल बी ओनली क्या? ये वैल्यू होगी ओनली 4EI by, दिस वैल्यू विल बी ओनली 4EI by L। इज इट क्लियर? और अगर ये थीटा भी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? दैट वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड बाई थीटा बी, दैट वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड बाई थीटा बी। हो गई ना, लग गया ना वही चीज विद दैट डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट। विच वन? स्टिफनेस। स्टिफनेस का कॉन्सेप्ट डेवलप करके वो चीज हमने लगवा दी। उसके लिए एक पैरामीटर डिफाइन करना पड़ा। स्टिफनेस क्या फर्क पड़ता है, वो करना ही पड़ेगा कुछ काम करने के लिए, ठीक है ना। ये चैलेंज थी हमें कि कैसे हम करें, ये ऐसा करें भाई, यूनिट रोटेशन को प्रोड्यूस करने के लिए मोमेंट की वैल्यू निकाल लो। तो दो केसेज आते हैं जब ये फिक्स होता है, और एक केस ये भी आता है इस टाइप का। आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि इफ दिस इज दिस हिंज सपोर्ट, इफ मोमेंट यहाँ वैल्यू ऑफ मोमेंट टू cause the value of moment to cause the unit rotation, theta equals to 1, this value is m is equal to 3EI by L। इसको हम कहते हैं फार एंड, इसको कहते हैं फार एंड, ये नियर एंड। when the far end is fixed, ये क्या है? hinged, hinged है। when the far end is hinged, then this value is 3EI by L। और अगर ये फिक्स्ड है तो दिस वैल्यू इज 4EI by L। और होगा भी ऐसा? नहीं होगा। किसमें ज्यादा मोमेंट लगाना पड़ जाएगा बताओ मुझे, इस वाले पे या इस वाले पे? सेम रोटेशन, यूनिट रोटेशन के लिए किसमें ज्यादा होगा? इसमें ज्यादा होगा। दैट वाई इट इज 4, इट इज 3। मैग्नीट्यूड इतना तो आइडिया हो ही गया ना, इट क्लियर टू यू ना। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 थी, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे है, यहाँ पे 0 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मीन्स ज़्यादा मोमेंट लगाना पड़ेगा। कैसे वैल्यू आई है तो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।
क्लियर? अब बस इतना कुछ अगर हमने कर लिया है तो बस अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है। क्या कॉन्सेप्ट बचा हुआ है? कि जैसे ही इस पे हम मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेप क्या हुआ, मैंने क्या बताया? पहला स्टेप तो आपको बता दिया, फिक्स इन मोमेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो करनी है, फिर से मोमेंट फाइंड आउट करना है। दूसरा स्टेप क्या बताया? दूसरा स्टेप ये वाला बताया, you have to find the moment, you have to find the value of the moment at the joint to produce unit rotation. You have to find the value of the moment to produce unit rotation, and that moment is called as stiffness. Means you have to find the stiffness at every joint. You have to find the stiffness at every joint. That will be your next step. That will be your next step. Is that clear? So, this is the second step. Next, third step. Come to the third step. Come to the third step. The third step is when we apply the moment. तभी ध्यान से सुने बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। When we apply the moment at this end B, automatically half of the value has been transferred to other end. क्या मैंने बोला? जैसे ही इस पे हम मोमेंट लगाना शुरू करते हैं, इसका आधा मोमेंट इधर अपने आप ट्रांसफर हो जाता है, अपने आप ट्रांसफर हो जाता है, ऑटोमेटिकली। होता नहीं होता है किसी चीज को? आपने नोटिस किया होगा, एक इस पे पूरा फिक्स कर दो और ये थोड़ा सा वो वाली राड, हल्की राड है ना, जो घूम सकती हो, घुमाओ आप, यहाँ पे घुमाओगे तो यहाँ पर भी घूमता है क्या? उसकी बात कर रहे हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे तो ज़्यादा घूमेगा, यहाँ पे कम घूमेगा। अरे वो वायर होता है ना, ये वाली वायर, ये जैसे ही वाली वायर है ना, इस वायर को ये अलग अलग आती है, नहीं वो वाली वायर, बिजली वाली वायर, जो ये तो खैर पहले से राउंड होके आ रही है, जो राउंड नहीं होती है उसको राउंड करना है। एक उधर खड़ा होता है, एक इधर खड़ा होता है, क्या ऐसे ऐसे उसको घुमाते हैं, यहाँ पे तो ज़्यादा होता है, उधर भी ट्रांसफर होता है क्या? उसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात कर, समझ गए ना जो कहना चाह रहा हूं मैं? तो हाफ ऑफ पार्ट मीन्स कितना? 2EI by L has been also transferred in the same direction. कैसा डायरेक्शन है ये? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कैसे मैं बनाऊं? अगर ऐसे बना दिया तो क्या हो जाएगा? तो कैसे बनाना चाहिए मुझे? क्लियर? बात समझ में आ गई? क्या है अगला स्टेप? थर्ड स्टेप क्या था? आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द मोमेंट, आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द स्टिफनेस वैल्यू, वी हैव टू, ये इसको बोलते हैं कैरी ओवर, CO। क्या है ये? दिस इज द कैरी ओवर, दिस इज द कैरी ओवर। और कितना होता है यहाँ पे? हाफ ऑफ द पार्ट इज कैरी ओवर, ठीक है? हाफ ऑफ द पार्ट इज कैरी ओवर। इस केस में बेटा याद रखना हमेशा, इस केस में ये होता है, और अगर ये ऐसा केस है, फिक्स है, दोनों एंड फिक्स है, तो जितना मोमेंट यहाँ पे लगाएंगे उतना ही इधर ट्रांसफर होगा, सेम मोमेंट। सो कैरी ओवर फैक्टर इज हाउ मच? 1। होगा नहीं होगा? नेचुरल सी बात है नहीं? नेचुरल सी बात है बेटा, इमेजिनिंग एक सब करनी पड़ेगी आपको। हर एक चीज का यहाँ पे प्रूफ नहीं मिलेगा आपको, मिल जाएगा बट प्रूफ में पड़े रहोगे तो फिर प्रूफ ही करते रहोगे। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है हमें। वी हैव टू सेव अवर टाइम। प्रूफ करने का तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? बस अब क्या करना है? अब आपका सारा काम हो गया, बस लास्ट स्टेप बचा हुआ है। कोई मुझे सजेस्ट कर सकता है कि क्या लास्ट स्टेप होगा? बता सकते हो आप मुझे? यस, आपने सोचा मेरे लिए यही बहुत है। एनी सजेशन? एनी सजेशन है? एनी सजेशन? मैं थोड़ी आपको हेल्प कर देता हूँ। हेल्प वो है कि कैन वी राइट
द वैल्यू ऑफ एम ए बी? कैन वी राइट द वैल्यू ऑफ एम ए बी? या कैन वी राइट द वैल्यू ऑफ एम बी ए? इसकी तो छोड़ो, कैन वी राइट द वैल्यू ऑफ एम बी ए? कैन वी राइट द वैल्यू ऑफ एम बी ए? कितना होगा ये वैल्यू कितनी थी? एम एफ ए बी थी ना, ये इसको मैं बिगाड़ क्यों दिया? ओके कोई बात नहीं, ये थी एम एफ बी ए थी, और ये वैल्यू कितनी थी? माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, और ये कितनी थी? ये थी एम एफ ए बी थी, ये माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। इरेज हो गया था, पहले से लिखा था। सो बताओ एम बी ए निकल आएगा क्या? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में कितना है? एम एफ बी ए प्लस 4EI बाई एल इनटू थीटा बी, दैट्स इट। क्योंकि किसके लिए ये? इट इज फॉर थीटा इक्वल्स टू 1, because it is for theta equals to 1, but in given beam it is not 1, it is theta b. So अगर यूनिट का पता है तो बाकी और के लिए किसी के लिए भी निकाल लो, थीटा बी से मल्टीप्लाई कर दो। Is that clear to all of you? So we can write m b a equals to m f b a plus 4EI by L into इसी तरीके से क्या हम ए बी लिख सकते हैं? एम ए बी भी लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं क्या? क्लियर? सो एम ए बी बताओ कितना लिखेंगे हम? एम एफ ए बी प्लस सेम ना, है ना, और इसको हम इसी डायरेक्शन में लेते हैं हमेशा, ठीक है ना। वैल्यू अगर माइनस आ जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि ये वाली है ना। डिस्प्लेसमेंट में हमेशा सारे मोमेंट लिए जाते हैं क्या? क्लॉकवाइज, सारे मोमेंट क्लॉकवाइज, सारे मोमेंट क्लॉकवाइज। और अगर वैल्यू माइनस आ रही है, इसका मतलब कैलकुलेट करने के बाद माइनस आ रही है, देन व्हाट इट्स मीन? दैट वैल्यू इज एंटी क्लॉकवाइज। इट शुड बी रिमेंबर्ड, इट शुड बी रिमेंबर्ड। एम एफ ए बी, इसकी वैल्यू कितनी होगी? एम एफ ए बी दिस वन प्लस कितना? 2EI थीटा बाई एल मल्टीप्लाई बाई थीटा बी, लिख लो इसे, प्लस 2EI बाई एल मल्टीप्लाई बाई थीटा बी। यस क्या बेटा? पे निकालना है तो थीटा ही नहीं हो। ए पे तो थीटा है, यहाँ पे तो जीरो है ना, यहाँ पे वैल्यू जीरो है ना, वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज जीरो ना, केवल यही तो है, थीटा बी तो है। ओके, और ये वाला क्या है जो ट्रांसफर हुआ है, कैरी ओवर हुआ है, उस पर तार को घुमा रहे हो इधर से, लेकिन उधर भी रोटेट हो रहा है। एक चीज और मुझे बतानी चाहिए थी, ये वाली, इसमें जरा बताओ कैरी ओवर इसका कितना होगा? इस पे अगर मोमेंट लगाएं तो इस पे कितना कैरी ओवर होगा इस एंड पे? कितना होगा इस पे? अगर एम लगाएं कितनी भी वैल्यू, कितना हो? विल बी जीरो। अरे मोमेंट क्या होगा यार, यहाँ पे तो खुद ही रोटेट कर जाएगा, घूम जाएगा। नहीं समझ में आई कॉमन सी चीज? कैरी ओवर फैक्टर विल बी जीरो फॉर दिस केस। आपसे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले हैं, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के, कैरी ओवर फैक्टर इज जीरो, ठीक है ना।
इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे बनाने वाला कितना टैलेंटेड है, आपसे कहीं भी घुमा सकता है आपको, कोई इसकी लिमिट नहीं है। समझे नहीं? क्लियर? सो आफ्टर राइटिंग दिस इक्वेशन, आप आगे के स्टेप मुझे क्या सजेस्ट कर सकते हैं? राइट। मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था, क्या बताया था? सबसे पहले हमको ये कैलकुलेट करते हैं, बताया था ना मैंने। तो क्या अब वो समय आ गया है? कैसे समय आ गया है? इक्वेट इट एज जीरो। और ये क्या इक्वेट जीरो कर रहे हो? ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो नीचे लिखना पड़ता है इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन एट कहां पे? बी। क्या है बी पे? एम बी ए इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। एंड आफ्टर यूजिंग दैट इक्विलिब्रियम कंडीशन वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम? बाय पुटिंग, इसको अगर इक्वेशन 1 करें, इसको इक्वेशन 2 करें, तो कितना आ जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सा? 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव वैल्यू ऑफ थीटा बी इज हाउ मच? माइनस डब्ल्यू एल क्यूब। कहां से आएगा? ये जीरो हो गया। अच्छा बताओ। हाँ, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48। हाँ करेक्ट, यस यू आर राइट। ये आ गया नहीं आ गया? आगे के स्टेप आपको मुझे सजेस्ट कर सकते हो, क्या है अगला स्टेप? व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? बस खत्म हो गया। पुट द वैल्यू, पुट दिस calculated value of theta b in equation number 2 to get the value of this one, to get the value of, and once we know this value, हो गया खत्म, that's it. That's it. So this is the displacement map. This is the displacement. This is the basic understanding of displacement map. नेक्स्ट क्लास में मैं इसको जनरलाइज करूंगा। सो इसके बाद क्या लिखना चाहिए आपको? फ्रॉम इक्वेशन नंबर व्हिच वन? 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी विल हैव वैल्यू ऑफ एम ए बी। मुझे बता दो जरा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई ए। ये क्वेश्चन मैंने फोर्स मेथड से भी कराया था। देखो रिजल्ट सेम है क्या? It is WL square by 8 minus WL square by what is the meaning of minus sign? It means so therefore यहाँ पे लिखना होगा आपको therefore we will have this, ये क्लॉकवाइज ऐसा ही क्लॉकवाइज, तो ये क्या करें हम? this will be WL square by 8। ये आ गया। एंड आफ्टर इसके बाद क्या है? स्ट्रक्चर 1। अभी तक क्या था? ये स्ट्रक्चर 2 था। जब स्ट्रक्चर 2 था, इन ए वेरी बिगिनिंग आई टोल्ड यू द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस 2। क्या है स्ट्रक्चर एनालिसिस 2? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्टैक इक्वेशन। तो स्टैक इक्वेशन हमने लिखा क्या यहाँ पे? क्या है स्टैक इक्वेशन? दिस वन, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्टैक इक्वेशन। और जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी उतना हम लिखेंगे, उतने के लिए हम लिखेंगे। इज दैट क्लियर? आगे काम आप खुद ही निकाल सकते हो। जरा निकाल के बताओगे क्या कितनी होगी वैल्यू? अब तो आपको यू रिएक्शन निकालना, तो यू विल बी वेरी फास्ट ना। अब तो वेरी फास्ट कैसे करना है इसको, है ना? डिफरेंस ऑफ मोमेंट डिवाइड बाई एल, नथिंग एल्स। आपको अब टाइम को सेव करना है, आपको सीखो। यू हैव टू सेव योर टाइम, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन इन एग्जाम्स। आफ्टर हैविंग दिस वैल्यू
the value of VA, if this value, this is A, this is B, then the value of VB will be what? It will be 0 minus WL square by 8 divided by L. कितना आया ये? WL by 8 आया नहीं आया? If it is WL by 8, then this value will be WL minus WL by 8. Means yes. So प्लस क्या करना पड़ेगा? प्लस WL by 2. तो कितना आएगा? माइनस या प्लस? नहीं, VB की वैल्यू प्लस आ गया बेटा. WL by 8 उधर का हो गया माइनस का, और ये WL by 2 कितना हुआ? 3WL by 3 by 8 WL. So this value is 5 by 8. इसके बाद आप कुछ भी कर लो, BMD प्लॉट कर लो, SFD प्लॉट कर लो. You know each and everything. You know each and everything. क्लियर बच्चों? क्लियर? सो लुक हियर. लुक हियर. नोट कर लिया इसे? सो स्टेप्स क्या क्या हुए? स्टेप्स नंबर 1, यू हैव टू राइट द स्टेप्स. You have to write the step. मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप लिखो. आप मुझे बताओगे What is the step number 1? वो स्टेप में लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो होगा ही होगा. Yes, this one. This is the first. Make all joint free from any degree of freedom. Remove all degree of freedom of all joint and find the value of friction moment. Write down. क्या लिखना है आपको? Degree of freedom from the joint. Remove all degree of freedom from the joint. Remove all degree of freedom from the joint and write and calculate fixed in moment. And calculate fixed in moment. नीचे लाइन से लिखें. If beam has continuous span. If beam has continuous span. If beam has continuous span like this. If beam has continuous span like this. This, suppose this point is A, this point is B, this point is C, this point is D. यहां तो केवल एक स्पान के लिए था. अगर ऐसा है और लोडिंग भी अगर कुछ इस तरीके से, ये है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, अब क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? ये करो यार. क्या है ये? These are the separated. Okay? These are separated. And you have to find. समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? Segment to segment. You have to find the value of segment to segment. मुझे जरा बताओ, नोटेशन बताओ. नोटेशन बता देता हूँ. वैल्यू तो क्या हो गया? This one. क्या लिखूँ मैं इसको? MF. ये राइट. MF AB. इसको क्या लिखा जाए? डायरेक्शन कैसे? ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं? ये ना, ये सही है ना? क्या लिखा जाए इसको? MF B है. क्लियर? इसके लिए आओ, BC के लिए आओ.
कैसे बनाऊं मैं? दिस वन. You should be very much confident about साइन. यही है, अगर साइन वाइन सब आ गया तो फिर क्या बचा? कुछ नहीं बचा स्ट्रक्चर. यही तो दिक्कत करता है हर मोमेंट पे. प्लस माइनस ही तो दिक्कत करता है. क्या लिखा जाए? एफ एम एफ बी सी. वेरी मच. नेक्स्ट इसको कैसा? दिस वन क्या लिखा जाए? एम एफ सी बी. वेरी गुड. नेक्स्ट के लिए क्या लिखा जाए? एम एफ सी डी. ये दिस वन क्या लिखा जाए इसको? एम एफ. और ये हम इंडिविजुअल कर ही सकते हैं. इसको हमें रिजल्ट, डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे हमें याद रखना पड़ेगा. इसका मैं बता चुका हूँ. यूडीएल का कितना? WL²/12. इसका भी बता चुका हूँ मैं. इसका क्या है? सुपरपोज कर देंगे, है ना? दो बार में लिखेंगे. पहले इसका कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका कैलकुलेट, सुपरपोज. और भी कोई अरेंजमेंट होता तो उसके लिए करते. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. क्लियर? दिस इज द फर्स्ट. सेकंड स्टेप. यहां पे आपने देख ही चुके हो, समझ ही चुके होंगे कि बी पॉइंट पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम थी क्या हो गई? यहां पे डिस्ट्रॉय हो गई है. सी पॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म हो चुकी है. इस पे भी खत्म हो चुकी है. यू हैव क्रिएटेड 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ऑल नोड्स. At all nodes we have created 0 degree of freedom. Next step number 2. What we should write? Tell me. What we should write? Right. यही क्या किया था यार? सेकेंड स्टेप इज व्हाट? दिस वन. 4EI/L is what? Stiffness. Is what? Stiffness. So the next step should be calculate the value of step. Stiffness लिखा तो यूनिट के लिए अपने आप हो गया. या थोड़ा सा सिंपल भाषा में लिखना चाहें तो लिखते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोमेंट एट एवरी ज्वाइंट. एट एवरी ज्वाइंट था ना? एट एवरी ज्वाइंट नहीं. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मोमेंट. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोमेंट एट द ज्वाइंट वेयर डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट. यहां पे नहीं, समझे ना? यहां पे नहीं, जहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन बीम में हो. जहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन बीम पे हो. फाइंड द वैल्यू ऑफ द मोमेंट. फाइंड द वैल्यू ऑफ द मोमेंट. फाइंड द वैल्यू ऑफ द मोमेंट. आगे क्या लिखना चाहिए? एट द ज्वाइंट वेयर डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट. और किसके लिए? फॉर यूनिट रोटेशन. फॉर यूनिट रोटेशन. फॉर यूनिट रोटेशन. नीचे बना लेना. क्या क्या बना लेना? रिजल्ट जो आपको ये क्या बताया था इसके लिए कितना होता है? इस ज्वाइंट पे अगर हमें करना है कितना? 4EI/L. और अगर ऐसा है देन दिस वैल्यू इज कितना? यस. इसको लिखो. दीज आर द वैल्यूज ऑफ. अगर ऐसी सिचुएशन है तो ऐसे. इसका मतलब है कि यहां पे जरा देखो कहां पे निकालोगे? बी पे, सी पे और डी पे. ए पे नहीं. ए पे नहीं. और अगर ये पहले से अगर ये ऐसा फिक्स होता तो केवल बी सी. क्लियर? अगर ये पहले से ऐसा होता तो केवल बी सी. इज दैट क्लियर? तो दूसरा स्टेप भी हो गया आपका. अगला स्टेप कहां था? क्या था अगला स्टेप? यस, कैरी ओवर. दिस वन इज थर्ड स्टेप. दिस वन इज थर्ड स्टेप. सो राइट थर्ड स्टेप.
इसमें इसमें क्या लिखा है आपने? कैलकुलेट लिखा है? अप्लाई लिखो, अप्लाई, नॉट कैलकुलेट, अप्लाई, अप्लाई, कैलकुलेट की जगह पे अप्लाई, ठीक है ना? अप्लाई करना है ना, प्रोड्यूस करना है ना यहाँ पे हमें, है ना? कैलकुलेट तो ठीक है, हमें मालूम ही है, कैलकुलेट क्या करना है? अप्लाई करना है। अप्लाई कहाँ कहाँ करना है? जहाँ जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट करती है, ठीक है? सो नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू कैरी ओवर। कैरी ओवर किसका? जो अप्लाइड है, जो अप्लाइड हो चुका है। अप्लाइड जैसे यहाँ पे 4EI/L हुआ है, तो कितना कैरी ओवर होगा इधर? इसका हाफ। सो दिस वैल्यू विल बी कैरीड ओवर कितना? इक्वल टू हाफ। और ये हाफ होगा कितना? सेम अमाउंट में। अगर ये क्लॉकवाइज तो ये भी क्लॉकवाइज। दैट आई वांट टू, दैट आई वांट टू। तो नेक्स्ट स्टेप लिखे कैरी ओवर। नेक्स्ट स्टेप इज कैरी ओवर। कैरी ओवर द मोमेंट, कैरी ओवर द मोमेंट, कैरी ओवर द मोमेंट टू द फार एंड, FAR, टू द फार एंड। कैलकुलेट वो क्या लिखा आपने? हाँ, फार एंड, फार एंड for the produced moment, for the produced moment, for the produced moment of step number 2, for the produced moment, produced moment या applied moment of step number कौन सा? 2 में जो हमने मोमेंट लगाया है उसकी बात कर रहे हैं, उसको हमें फॉरवर्ड करना है, ठीक है? और याद रखने के लिए थोड़ा सा ये बना लो कैरी ओवर के लिए। ये अगर ऐसी चीज है तो अगर यहां पे आप m लगा रहे हो तो यहां पे कितना हो जाएगा? m/2 एंड कैरी ओवर इज हाफ। याद रखना है आपको। इफ m मोमेंट हैज बीन अप्लाइड देन हाफ ऑफ द पार्ट इन सेम डायरेक्शन विल बी कैरी फॉरवर्ड। इसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड, विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द कौन सा एंड है ये? फार एंड। दिस इज नियर एंड, दिस इज फार एंड। ओके, सिमिलरली इफ ये सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है, सो इफ दिस मोमेंट m हैज बीन अप्लाइड, सो फॉर दिस केस द कैरी ओवर विल बी, बताया मैंने आपको क्या हो कैरी ओवर? कैरी ओवर इज इक्वल टू 1 इज कैरी ओवर, कैरी ओवर इज 1 मीन्स सेम अमाउंट ऑफ। क्लियर? एक चीज और, वो वाली हिंज वाली 0 है वो, लेकिन आपको पता होना चाहिए, तो उसको यहीं पे नोट कर लो। इफ ये मोमेंट लगाया देन द कैरी ओवर वैल्यू इज द कैरी फॉरवर्ड विल बी 0, नो मोमेंट, 0 मोमेंट, कैरी फॉरवर्ड इज 0, कैरी फॉरवर्ड मोमेंट इज 0। राइट। ये सब जो कैरी ओवर मैंने बताया है आप याद रखना, कभी भी पूछा जाता है किसी भी तरीके से। अगला स्टेप क्या था? ये कैरी फॉरवर्ड भी हो गया। अगला स्टेप क्या था? दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप। सो राइट, क्या है नेक्स्ट स्टेप? फाइंड आउट द राइट, क्या ये? राइट द एंड मोमेंट इक्वेशन, राइट द एंड मोमेंट इक्वेशन। एंड मोमेंट ही तो है ये, क्या है ये? राइट द एंड मोमेंट इक्वेशन एट ऑल द ज्वाइंट्स, एट ऑल द ज्वाइंट्स। राइट द एंड मोमेंट, राइट द एंड मोमेंट इक्वेशन एट ऑल द ज्वाइंट्स, एट ऑल द ज्वाइंट्स। ज्वाइंट ना, या ज्वाइंट्स या नोट्स जो भी लिखना चाहो, हर एक ज्वाइंट्स पे ना बेटा। ये ए के लिए क्या लिखोगे? फॉर ए इट इज ए बी, फॉर बी इट इज बी ए, है ना? इस जैसे यहाँ पे फॉर ए इट इज ए बी, फॉर बी इट इज बी ए, एंड एट पॉइंट बी आल्सो एक और होगा, क्या होगा? एम बी सी भी होगा, राइट?
सी पे आओ। एक तो सी बी के लिए होगा, दूसरा किसके लिए होगा? इसके लिए केवल डी सी, राइट। और ये लिखना तो आप मालूम ही है, स्टिफनेस वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड बाय रोटेशन थीटा। क्लियर? इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अगला स्टेप कौन सा है? नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? ये हो गया चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या है? यही है क्या? और क्या है वो स्टेप? क्या था? we have to find out the equilibrium equation. We have to find out the equilibrium equation at the कहाँ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कहाँ पे मिलेंगी? एट द जॉइंट वेयर डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट, वहीं पे मिलेंगी। मीन्स फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम इक्वेशन, 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 फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम इक्वेशन and put the value of moment and put the value of suitable 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 moment किस लिए? to find the, क्या लिखा जाए? to find the degree of freedom, to find the degree of freedom, to find the degree of freedom, to find the degree of freedom. What will be the next step? कौन सा? ये वाला है क्या? ये वाला, दिस इज स्टेप नंबर 6। क्या 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 लिखा जाए? What should be the, क्या लिख सकते हैं इसको? आफ्टर नोइंग द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या करना है? ये जो इक्वेशन लिखी हुई है 1 2, इसमें वैल्यू पुट करके मोमेंट की वैल्यू निकाल लो। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी फाइंड द वैल्यू ऑफ मोमेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंड मोमेंट, find the value of end moment, find the value of end moment using calculated degree of, using calculated degrees of freedom, using calculated degrees of freedom, using calculated degrees of freedom। काम खत्म हो गया, स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 का काम खत्म। अगला स्टेप क्या था? स्ट्रक्चर 1 का था, तो है ना, अगला लिख लो। एंड अप्लाई द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस टू फाइंड अदर रिमेनिंग फोर्स। नेक्स्ट स्टेप शुड बी फाइंड, अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन, अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन टू फाइंड अदर रिमेनिंग फोर्सेस, टू फाइंड अदर रिमेनिंग फोर्सेस, टू फाइंड अदर रिमेनिंग फोर्सेस। Okay beta? So this was the basic step, this was the basic step of displacement method. If you have any doubt, then you can ask anything. Clear? Clear to everybody? क्लास आने का कुछ बेनिफिट मिला आज? हैं? घर पे बैठे रहने से बेनिफिट मिलता है क्या? ओह